students, welcome back to our AKVB e-learning. In today's class, we will learn about a second chapter, that is the First World War and Russian Revolution. Open your textbooks, dear students. So students, everyone of have heard about World War I and World War II, Russian Revolution, French Revolution, German Revolution, right? So, today in this class we will learn about Russian Revolution and the First World War. Okay. Now, वर्ल्ड वॉर नाम ही ये बता रहा है कि वर्ल्ड के बीच में, मतलब वर्ल्ड की एक आधी कंट्रीज एक तरफ थी और दूसरी आधी कंट्रीज एक तरफ थी. तो लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन पार्ट कि हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस and what were their consequences, right? So, if we start with an introduction, basically the Western European countries were too greedy, और उनके दो desires थे. First was to expand their empires and the second was to acquire new territories. एक तो अपनी greedy, मतलब अपनी लालच उनकी इतनी बढ़ रही थी कि वो दो चीजों में बिलीव कर रहे थे. एक था उन्हें सिर्फ अपना रूल एक्सपांड करना था और दूसरा कि नई नई टेरिटरीज को कैप्चर करते जाना था. So they established the colonies on an African and Asian countries. They started acquiring African and Asian countries. And consequently there arose a competition between European nations to establish colonies. अब हर कोई ऐसे ही सोच रहा था कि भाई मैं ये कंट्री पे हुकूमत कर लूं, मैं ये कंट्री पे हुकूमत कर लूं. So this took a result as World War. Now, if we talk about Western countries taking colonialism over Asia and Africa, then it was something like that कि Spain took control over. If we talk about Spain took control over Netherlands, Belgium and Luxembourg. कहाँ पे उसने कर लिया अपना कंट्रोल? Luxembourg, Netherlands and Belgium. Even the Spanish king took control over Portugal king, as the Portugal king died without the हेरिडेट, मतलब वारिस के बिना जब वो मर गया तो उसकी ब्लड रिलेशंस की वजह से वो रूल भी किसके हाथ में चला गया? स्पेनिश किंग के हाथ में. Then France too, simultaneously France took control over some territories of Africa and Asia and also took some control over Italy. Austria took control over German, right? यहाँ तक कि अपने आसपास की कंट्रीज को भी उन्होंने छोड़ा था नहीं. Now, if we talk about colonialism in Asia, so it was like after entering India, England took control over Sri Lanka, Myanmar, Singapore, Malaysia and China also. अब चाइना और इंग्लैंड के बीच में ओपियम वॉर्स हुए थे, जिसका रीजन था ओपियम ट्रेड. ओपियम ट्रेड में चाइना वर्सेस इंग्लैंड के बीच में एक वॉर हुआ और चाइना उसमें इंग्लैंड से 5 पोर्ट्स हार गए, मतलब 5 ट्रेड सेंटर्स जहां पे वो उनके ओपियम की ट्रेडिंग होती थी वो हार गए. एंड दिस वे इंग्लैंड टुक कंट्रोल ओवर मेनी territories and it expanded their empire. Now, taking advantages of China's weakness, Japan, Russia, Germany, France, Belgium also took control over China. They took both the controls, they took trading rights also and even political rights. Now, the interesting thing for European was कि desert area of West Asia were so rich in oil resources. Oil resources उनके पास इतने ज़्यादा थे कि उनको अपनी कॉलोनीज वहाँ पे भी एस्टैब्लिश करने को दिख रही थी. So उनके खुद के बेनिफिट के लिए, for their own benefit, what did England, Germany and Russia, America do? They started setting up oil companies over Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Bahrain. So in this way, most of the part of Asia got colonialized. हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ के ऐसा लग रहा था कि ये लोग ने सिर्फ इंडिया के साथ नाइंसाफी की, इंडिया को ही सिर्फ गुलाम करके रखा, इंडिया पे ही colonialism थोपा. लेकिन not only India, there were many countries of Asia and Africa who got the victim of this Europeans.
Now, the second thing which we will learn over here is colonialism in Africa. Now, by the end of 15th century, Dutch also took control for the first time over South Africa. After the Industrial Revolution, Europeans started competing among themselves and found that provinces of Africa are quite suitable for getting raw material. तो इसी वजह से उन्होंने वहां पे अपनी कंट्रीज की अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज पे और टेरिटरीज पे कब्जा करने के लिए आगे बढ़े. तो द किंग लियोपोल्ड, द किंग ऑफ बेल्जियम, सीज्ड द मेनी प्रोविंसेस ऑफ Congo. England took control over Egypt and some provinces of eastern and southern Africa. France took control over Tunisia, Morocco and western parts of Africa. Italy captured areas around the Red Sea, and Spain and Portugal also took control over some parts of South Africa. Then African territories were diluted among European nations, and at the end of conference that was held in Berlin in the year 1884 and 1885, entire Africa was colonized by different European nations. अलग अलग यूरोपियन नेशंस जाके यहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया. नाउ एक तरफ यूरोपियंस अपनी लालच से अपना रूल एक्सपांड करना चाह रहे थे और दूसरी तरफ जर्मनी और इटली ने एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया. नाउ जैसे ये यूनिफिकेशन हो गया, यूनिफिकेशन यानी दोनों के बीच में समझौता हो गया. किसके बीच में? जर्मनी और इटाली के बीच में. सो दिस यूनिफाइड जर्मनी, व्हाट डिड दे डू? दे एंटर्ड इनटू द कंपटीशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कम्युनलाइजेशन एंड colonization. Germany ने भी entered all the competition, right? So what happened? कि this phenomena had exploited many countries politically as well as economically and socially, due to which their development stopped. अब हर कोई एक दूसरे की कंट्री पे चढ़ाई करना चाह रहा था, हर कोई एक दूसरे की कंट्री पे हुकूमत करना चाह रहा था. तो by this what happened कि the countries who were colonized, their development completely got stopped. So by this, the First World War took place. Now, obviously कोई ना कोई reasons होंगे World War की, right? So the factors that were responsible for the First World War was the Frankfurt Treaty. क्या था Frankfurt Treaty? अब ये क्या था? पहले तो ये वर्ल्ड वॉर ने इतिहास, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल इवेंट. व्हाई? बिकॉज इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में तहस नहस मच चुकी थी. वॉर began on 1st August 1914 and in which Germany defeated France. जर्मनी ने फ्रांस को सिडन वॉर में हरा दिया था, जिसकी वजह से फ्रांस को फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन करनी थी. अब फ्रैंकफर्ट ट्रीटी क्या थी कि उसको ये वॉर की होने की वजह से वॉर फाइन पे करना पड़ा, और दूसरा कि वो अपनी दो प्रोविंसेस को दे देंगे. कौन सी दो प्रोविंसेस? लॉरेंस एंड एप्सिस. किसको दे देनी पड़ी? जर्मनी को. सो फ्रांस ये बेइज्जती कभी सहन कर पाया ऐसा था नहीं. सो ऐसा माना गया है कि फ्रैंकफर्ट ट्रीटी खुद एक कारण है वर्ल्ड वॉर का. ठीक है. एंड सो एंड ऑफ वॉर सॉट द सीड्स ऑफ अ फ्यूचर वॉर. इसके बाद आपको पता है कि 2 वर्ल्ड वॉर हुए, राइट? सो दिस वाज द रीजन फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट अस गो थ्रू व्हाट वर द इकोनॉमिक फैक्टर्स. अब क्या हुआ कि इंग्लैंड ने अपना 19th सेंचुरी के आसपास तक एशिया और अफ्रीका पे तो पूरा कंट्रोल रख दिया था, राइट? उसने सारी कंट्री की इकोनॉमी को तहस नहस करके खुद बहुत रिच हो गए. नाउ ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट कोलोनाइजेशन, यूरोप के पास सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत आ खड़ी. तो इन द लास्ट 20 years ऑफ 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो जर्मनी कंपटीशन में आ गया. हमने आगे देखा ना कि जर्मनी कंपटीशन में आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कम्युनलाइजेशन में, कॉलोनलाइजेशन में.
तो जर्मनी ने क्या किया, अपने गुड्स इंग्लैंड और फ्रांस के कंपेयर में सस्ते दामों में बिकना स्टार्ट कर दिया। तो जो अफ्रीकन और एशियन मार्केट में इंग्लैंड और फ्रांस की डिमांड कम हो गई। किसकी वजह से? तो कहा गया है कि जर्मनी के वजह से। एंड thus the economic competition between Germany and England arose. दूसरा रीजन था मिलिट्रियलिज्म। नाउ मिलिट्री फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी था फॉर द कॉम्पिटिशन ऑफ यूरोपियन नेशंस गॉट इनटू फॉर एक्सपांशन। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड रशिया हैड बिगन एक्सपांडिंग देयर मिलिट्री पावर। और ऐसा माना जाता है कि ये जो बड़े 4 कंट्रीज है उनके पास बहुत हाई मिलिट्री पावर थी और उन्होंने लिटरली अपनी मिलिट्री को एक्सपांड करना स्टार्ट कर दिया। अब कंट्रीज लाइक जापान, इटाली, जर्मनी कंपल्सरीली मिलिट्री ट्रेनिंग हैड स्टार्टेड। ये कंट्रीज के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंपल्सरी स्टार्ट हो गई। वेपन्स का प्रोडक्शन दिन पे दिन बढ़ रहा था। क्यों? ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए वो यूज कर सकते थे। दस मिलिटरिज्म गॉट एन impetus and military competition added to economic competition created a various atmosphere of war. War के लिए एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर आ खड़ा हुआ। Then came groupism. अब ग्रुपिज्म में क्या हुआ कि सीक्रेट ट्रीटीज लोगों ने अपने अपने बचाव के लिए, दो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, सो सीक्रेट ट्रीटीज साइन करनी सबने एक दूसरे के लिए साइन करनी स्टार्ट कर दी। अब इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रशिया हैड जैसे ही वो लोग इंटरनल ट्रीटीज साइन कर रहे थे, सीक्रेट ट्रीटीज, वर्ल्ड के 2 पार्ट हो गए। कैसे? 2 पार्ट। एक पार्ट में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया एंड टर्की, वायरस दूसरे पार्ट में था इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और जापान। नाउ अ फीलिंग ऑफ जेलेसी, enmity, mistrust, fear and hatred evolved between the groups, which was an important factor of World War. दोनों के बीच में नफरत की भावना, जो मिसट्रस्ट था, जेलसी थी, उनकी वजह से क्या हो गया? First World War took place between the 2 groups. Now, feeling of fears and nationalism. अब the independence of Belgium and Greece and the unification of Germany and Italy were the result of nationalism. ये लोगों से इंस्पायर होके हर किसी ने अपने आप को फ्रीडम के लिए नेशनलिज्म मूवमेंट स्टार्ट करने की सोची। बट लेटर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टुक एन एक्सट्रीम एंड नैरो फ्रॉम इन यूरोप. Economic jealousies, competition and colonialism in Europe had increased so much that the इतना भयंकर एक दूसरे के मन में कहते हैं ना कि जेलसी, फिर कोलोनियलिज्म, कंपटीशन इतना ज्यादा भयंकर एक दूसरे के मन में आ गया था कि ये नेशनल इंटरेस्ट वो अब पूरी तरीके से खत्म हो गया. मतलब कंट्री अपने लिए नहीं, अब हर किसी को तबाह करना चाहती थी. लव फॉर ओन नेशन एंड हेटर फॉर अदर नेशन वॉज एंकरेज. वो सिर्फ खुद की कंट्री का देखना चाहते थे, बाकी कंट्री का नहीं. द जर्मन शिप के जायर विलियम, कौन था? जायर विलियम वॉज द अदर ओरिजिनेटर ऑफ नेशनलिज्म एंड colonialism. He was over ambitious and believed in world leadership. वो किस में बिलीव करता था? वर्ल्ड लीडरशिप में. He wanted to get things done according to his will and with the help of his grand military power. The feeling of war spread across the nation as in Germany, and this had resulted in World War I. Then role of newspapers. Newspapers ने भी एक important role play किया. Newspapers of European nation aroused so much of hatred among people with their mutual derogatory, provocative, exaggerated and false write-ups by spitting venom against rival nations that the rulers of respective nation could not even make effort for establishing peace and harmony. अब कैसे सिचुएशन न्यूज़पेपर्स ने की कि अपने कंट्री में जो रूल कर रहा हो, सपोज इंडिया पे अगर यूरोपियंस रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो ऐसा फैलाने लगे
कि इतना जहर भर दिया अपने रूलिंग कंट्रीज के लिए कि अगर वो पीस एस्टैब्लिश करना चाहे तो भी जो कंट्री पे रूल हो रहा था वो पीस बिल्कुल भी पीस हो ऐसी सिचुएशन रहने दी थी नहीं. नेक्स्ट वॉज फिलोसॉफी अबाउट वॉर. अब कैसा हुआ पता है? द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेल फेड टुक रूट इन यूरोप. अब यूरोप ने क्या सोच लिया कि अगर हमें वेलफेयर चाहिए तो वॉर इज ओनली द वन एंड द अल्टीमेट रास्ता. द जर्मन राइटर ट्रॉट्स्की पब्लिश मैगजीन्स लाइक ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव. यानी कि जो लकी है, जो है वेल्दी है, जो रिच है, तो सुपीरियर है, सिर्फ उन्हीं के पास जीने का अधिकार है. वॉर अलोन इज द नेशनल नीड. अब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक वॉर ऐसा तरीका है जो सिर्फ वॉर ही एक ऐसी नीड बन चुकी है अब. द जर्मन राइटर एक्सप्रेस्ड वॉर एज अ स्कैर्ड वर्क. The Prince of Austria and his wife were assassinated by being shot at by a member of Siberian terrorist organization Black Hand. Austria blamed Sarabia for the involvement in the act and gave an ultimatum to hand over the culprit to Austria within 48 hours. Serbia declared its ignorance in the matter. Without listening to anything from Siberia, Austria declared a war on Sarabia and the First World War began with this. Now, ऑस्ट्रिया के प्रिंस और उनकी वाइफ पे गोली चलाई गई थी बाय साइबेरियन टेररिस्ट. अब बिकॉज वो वहां के टेररिस्ट थे, उनकी कंट्री को ऐसा चेतावनी दिया गया था कि 48 आवर्स के अंदर कल्प्रिट को सामने लाया जाए. लेकिन साइबेरिया ने उसे कंप्लीटली इग्नोर किया, जिसकी वजह से एक वॉर डिक्लेयर हुआ एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. नाउ लेट्स रीड इट आउट कि व्हाट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. In First World War, 24 nations supported the Allied nations and 4 nations supported the Axis nation. Now, दो ग्रुपिज्म हो गया था, Allied nations and Axis nation. Initially, Germany made noteworthy victories in Europe. स्टार्टिंग में तो यूरोप पे जर्मनी ने काफी अच्छी विक्ट्री ले ली थी, लेकिन इससे फ्रेंच आर्मी कंप्लीटली खराब हो चुकी थी. Now, it fought submarine wars and destroyed the ships of Allied nation. जर्मनी ने Allied nation की सबमरीन वॉर यानी कि अंडर वाटर वॉर्स किए, जिसमें Allied nation की शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था. Many soldiers and civilians died because of tanks and poisonous gases. तोप फोड़ने की वजह से और poisonous gases की वजह से काफी civilians और soldiers की डेथ हो गई. In 1970, the Russian Revolution started, so Russia withdraw from the war. Russian Revolution उसी बीच में स्टार्ट हो गया जहाँ पे उन्होंने वॉर में से अपने आप को निकाल दिया. रशियन रिवॉल्यूशन में हम इसी चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे. Germany was very strong at this time. It managed to drown an American steamer, Lusitania, in which 147 American soldiers died. तो जर्मनी इस वक्त बहुत पावर में आ चुकी थी. उसने अमेरिका की शिप में भी, स्टीमर को भी तहस नहस कर दिया, जिसमें काफी अमेरिकन सोल्जर्स मरे गए. कॉन्सिक्वेंटली अमेरिका ज्वाइन द अलाइड नेशन फॉर द वॉर इन अप्रैल 1917. तो इसी वजह से अमेरिका ने किसको ज्वाइन कर लिया? Allied nation को. Thus the Allied nation became stronger. German army could not withstand the American troops. अब जर्मनी के सामने, क्योंकि अमेरिका ने Allied nation ज्वाइन कर लिया और Allied nation ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से जर्मन आर्मी उसके सामने ज्यादा देर तक टिक पाई नहीं. द होल पोजिशन ऑफ द वॉर चेंज. जैसे जैसे वो जर्मनी स्ट्रांगर था, वैसे वैसे अब अलाइड नेशन ज्यादा स्ट्रांगर हो रहे थे. सिचुएशन एकदम रिवर्स हो गई. बल्गेरिया इन सितंबर 1918, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया इन अक्टूबर 1918 ज्वाइन द अलाइड नेशंस. अब बल्गेरिया, टर्की और ऑस्ट्रेलिया ने अलाइड नेशंस ज्वाइन कर लिए. तो सो द जर्मन लीडर काजिर एब्डिक्टेड हिज पोजीशन एंड रैन अवे. वो धूम उठा के भाग गया. Germany surrendered to Allied nation and signed a ceasefire treaty and the war came to an end. Ceasefire treaty अगर आपको पूछा जाए कि क्या है, तो इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे. Now,
इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या इफेक्ट्स हुए वर्ल्ड वॉर के? इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ किस चीज का? मैन एंड मटीरियल, यानी इंसान भी मर रहे थे और काफी सारा नुकसान भी हो रहा था. 6.5 crore people took part in this war and at least 1 crore died, 2 crore were injured and 70 lakh were permanently handicapped. Just see the impact. कितना बुरा हुआ. More number of people died because of starvation. अब वॉर खत्म होने के बाद उनके पास प्रोडक्टिविटी तो सारी बंद हो चुकी थी, तो काफी सारी पब्लिक स्टारवेशन की वजह से मर रही थी, कोई एपिडेमिक के वजह से मर रहा था, राइट. सो द टोटल वॉर एक्सपेंडिचर वॉज क्वाइट, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी वर्ल्ड को इस वॉर की. सोशल चेंज. ड्यूरिंग द वॉर, सिंस मेजॉरिटी ऑफ मेन of all the nations were on the war front, women shouldered the responsibility of family and occupation. अब घर का कारोबार जो था वो सारा वुमेन ने स्टार्ट कर दिया. क्यों? क्योंकि मेंस तो सारे वॉर में बिजी थे और वॉर की तैयारियों में बिजी थे. So they stepped out of their homes and successfully took over responsibility in professional field. अब क्योंकि उनको अपने घर बार चलाने थे, तो उन्होंने अपने प्रोफेशनलिज्म को के आगे एक कदम उठाया जिसमें वो काफी सक्सेसफुल भी रहे. सेल्फ कॉन्फिडेंट अमॉन्ग वीमेन गॉट इक्विवेलेंट टू द मेन, दोनों की बराबरी आ गई. कॉन्सिक्वेंटली डिमांड ऑफ वुमेन गॉट इंक्रीज्ड. ड्यूरिंग द वॉर द प्रोडक्शन थिंग्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी हैड रिड्यूस्ड. अब बेसिक नेसेसिटी की जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो गई थी. एंड जो वॉर की इक्विपमेंट्स थे, वॉर रिलेटेड जो नेसेसिटीज थी उसकी बढ़ गई. तो इसकी वजह से स्कैरसिटी खड़ी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट खड़ी हुई, स्टारवेशन स्टार्ट हुई. अब ये सारे होने की वजह से दंगे फसाद शुरू हो गए एंड द पीपल सफर्ड अ लॉट. चिल्ड्रंस कंडीशन वॉज पैथेटिक. चिल्ड्रन की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हुई. सो द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस वॉज signed. Now, what is Treaty of Versailles? At the end of First World War, the unconditional surrender of Germany in front of allied nation brought an end to the war. क्योंकि दो पावरफुल पावर्स एक दूसरे के सामने अगर टकरा रहे थे तो वर्ल्ड वॉर बहुत ज्यादा, वॉर एकदम एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ गया था. जैसे ही जर्मनी ने सरेंडर किया, वॉर का एंड होना स्टार्ट हुआ. Then the allied nation undertook the peace process in Paris, in which some 58 commissions were formed and 145 sessions were organized. Obviously, अब वॉर, नफरत की वजह से वॉर इतना ज्यादा खराब हो रहा था कि there should be some peace process which took place in Paris with 58 commissions and 145 sessions were organized. The agreement made Germany during the Paris peace process at Mirror Palace at Versailles. Thus it came to be known as the Treaty of Versailles. Now, what happened? There were 4 provisions in Treaty of Versailles. 4 अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया था. पहला था रीजनल अरेंजमेंट, रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिसआर्मामेंट. डिसआर्मामेंट यानी कि वेपन्स का अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो वॉर की कोई सिचुएशन ही नहीं खड़ी होगी, और मिलिट्री भी कम कर देंगे. The third was the arrangement of distribution of gains at the end of war and war fine and other provisions. So these were the 4 things that were discussed. The American President Woodrow Wilson, British Prime Minister Lord George, French President Clemenceau, and Italian President Orlando played an important role in the treaty. Germany was found responsible for the war. अब किसको रिस्पॉन्सिबल माना गया? जर्मनी को. तो उसको 6.5 बिलियन पाउंड पे करने पड़े एंड इट हैड टू गिव अवे रूअर रीजन ऑफ फ्रांस. फ्रांस का ये जो एक रीजन था उसको दे देना पड़ा. द राइन रिवर हैड टू बी ओपन फॉर इंटरनेशनल सी रूट. अब राइन रिवर जो जर्मन्स की वजह से बंद हो गई थी वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए उसे वापस शुरू करवानी पड़ी. द राइनलैंड रीजन ऑफ फ्रेंच बॉर्डर वॉज डिसॉल्व्ड from being a fortress, as well as the mineral rich region was given away to France.
फॉर 15 years. अब जो बेस्ट पार्ट्स थे जर्मनी के वो उसे फ्रांस को 15 साल तक दे देने पड़े. मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वर कॉन्फिस्टिकेटेड. अलास्का एंड लॉरेंट वर टू बी रिमेन टू फ्रांस. अब जो दो पार्ट्स उन्होंने जर्मन से ले लिए थे, सॉरी फ्रांस से जर्मनी ने ले लिए थे, वो भी उनको वापस लौटा देने पड़े. एंड अबाउ ऑल द थिंग्स Germany was to give France and other allied nations a large quantity of coal and iron annually as the benefits of war. अब जर्मनी को फ्रांस और बाकी अलाइड नेशंस को क्या क्या देना पड़ रहा था? कोल एंड आयरन देना पड़ रहा था. Germany was made to sign these terms and conditions on gunpoint and forcibly, because of which there was bitterness and disseparation among Germans. Consequently, the German economically failed miserably. ये जर्मनी को साइन नहीं करनी थी. ऑब्वियसली वो अपने जीता हुआ क्यों वापस कर दे, बट फिर भी उसे गन पॉइंट यानी कहते हैं ना कि एकदम जबरदस्ती उनसे ये ट्रीटी साइन करवाई गई थी. नाउ लॉन्ग, ये तो थे शॉर्ट टर्म इफेक्ट. लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या देखेंगे हम यहाँ पे? लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स वर कि देयर वाज अ फीलिंग ऑफ रिवेंज. ऑब्वियसली गन पॉइंट पे अगर आपसे कोई साइन करवा रहा है कोई ट्रीटी, तो आप उसका रिवेंज लेने जरूर खड़े होंगे. सो पीस कुड नॉट बी एस्टैब्लिश विद द ट्रीटी. ये ट्रीटी की वजह से पीस बिल्कुल भी एस्टैब्लिश हो सके ऐसा था नहीं. सोशलिस्ट रशिया was not given a place in the League of Nations, जिसकी वजह से सोशलिस्ट रशिया को लीग ऑफ नेशन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करने को दिया था नहीं. अमेरिका डिड नॉट जॉइन द लीग ऑफ नेशन. दैट्स व्हाई इट कैन बी सेड दैट द रीजन फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज द पीस प्रोसेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ इसीलिए था क्योंकि पीस प्रोसेस एस्टेब्लिश किया. पीस प्रोसेस में जो अलाइड नेशंस थे वो लोग पावर में थे, तो उन्होंने एक्सिस नेशन पे बहुत ज्यादा हुकूमत की, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस. नाउ इफ यू टॉक अबाउट रशियन रिवॉल्यूशन दैट जो साथ ही साथ चल रहा था, जिसकी वजह से रशिया ने अपने आप को वर्ल्ड वॉर में से निकाल लिया, तो वो था बॉल्शविक रिवॉल्यूशन. अब इसमें क्या था? द रशियन रिवॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे वर्ल्ड वॉर का रोल है, उतना ही रशियन रिवॉल्यूशन को भी पार्ट दिया गया है. had been oppressed and suppressed by the Tsar of Russia. Now Tsar was ruling Russia over there at the period of the revolution, right? So what happened? Russian Tsars who inherited the position were all dictators and enjoyed uncontrolled rule over people. यानी कि उसके ऊपर complete rule किसका हो गया था? people पे पूरा control Tsars का हो गया था, Russian Tsars का. So people did not have any rights during this period. Public के हाथ में कोई भी powers थी नहीं. The Tsars were so cruel and pitiless on people that if anyone demanded for any right, he was tortured, suppressed, or were so severely punished or condemned to be sent into a bone-chilling and dead cold of Siberia. आइदर उनको पनिश किया जाता था, आइदर उनको पेनाल्टीज पे किया, टॉर्चर किया जाता था, या फिर उनकी डिमांड्स तो कैसे भी पूरी होती थी नहीं. This uncontrolled and oppressive Tsardom became the reason for grief, poverty and suffering among people. Now इसी की वजह से जो ये एक्शंस हो रहे थे सार्स के, उसकी वजह से क्या हो रहा था? पब्लिक अनसेटिस्फाइड थी, जिसकी वजह से उनके बीच में पुअर्टी और सफरिंग स्टार्ट हो गई. सो द रशियन फार्मर्स, लेबरर्स एंड पीजेंट्स वर नॉट गेटिंग इनफ इनकम डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड. वो कितनी भी मेहनत करे वो गरीब ही रह जाते थे. अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गैपन, अ लार्ज रैली वॉज टेकन आउट टू ज़ार्स रेसिडेंस. अब ज़ार जहाँ पे रहते थे उनके बाहर एक रैली निकाली गई. विंटर का टाइम था. विंटर पैलेस ऑन 22 जनवरी 1905 संडे. दिस पीपल वर अनआर्म्ड. ये बिना हथियार के गए थे. While some had the Tsar's picture in hand with caption like "Long live the little white lord of Russia."
written on it. The Tsar's army opened fire on the innocent people, because of which thousands of innocent people died. And the snow in Pittsburgh, where the Tsar's palace was situated, turned red with blood. अब जार की जो आर्मी थी उन्होंने ओपन फायर कर दी, जिसके वजह से पूरा जो स्नो था वो रेड हो गया, इसलिए ये ब्लडी संडे भी इसको कहा जाता है. दिस केम टू बी नोन एज ब्लडी संडे इन हिस्ट्री. Around this time, a large number of Russians got provoked and became restless as the weakness of the Tsardom had become obvious when a small nation like Japan had defeated a massive nation like Russia in the Russia-Japan war. Now, अब उनके पीपल को पता चल गया कि उनकी वीकनेस क्या है, तो दे फेल्ट कि हमें क्या करना चाहिए. प्रोवोक होके वो लोग ने अपनी खुद की लड़ाई के लिए दे स्टार्टेड एन मूवमेंट. In order to pacify the angry Russians, an announcement to call for a Duma legislative assembly, which was not been called for years, was made. अब Duma legislative assembly जो सालों से कभी गैदर नहीं हुई थी, वो बुलाई गई. Eventually, four such Duma were called. But before it can take steps to satisfy the citizen, it had been called off. वो अभी सिटीजन्स के लिए कुछ बोले उससे पहले ही वो मीटिंग को खत्म कर दिया गया. On 8th March 1970, the oppressed worker of Petrograd called for a strike. The Tsar sent his troops to contain this event. सिचुएशन पे कंट्रोल लाने के लिए उसने क्या किया, अपने ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को भेजा. But the army refused to shoot these people. As a result, the revolution began. अब उनके आर्मी ने भी क्या किया, पीपल को वो शूट नहीं करेंगे ऐसा बोल दिया, तो इसकी वजह से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ. एंड आफ्टर द फॉल ऑफ ज़ारडम, द पावर फेल इनटू द हैंड ऑफ Kansky लीड Menshevik group. That was the minority group of the Russia. Tsar was the majority group. Okay. After the fall of Tsardom, power fell in the hand of Menshevik group. Except for Lenin, everyone in Russia was happy with the fall of Tsar. Lenin group के अलावा हर कोई जार की पावर गिरने से खुश थे. But Lenin believed that the importance of labor, as propagated by Karl Marx, while the Menshevik group believed in the importance of middle class. अब ये लोग किस में बिलीव करते थे, मिडिल क्लास में. As a result, Lenin instigated that Bolsheviks against Mensheviks in November 1917. इसीलिए इसको दो नाम दिए गए हैं, रशियन रिवॉल्यूशन एज वेल एज बोल्शेविक रिवॉल्यूशन. रशियन रिवॉल्यूशन वाज अगेंस्ट ज़ार एंड द पीपल ऑफ रशिया, एंड बोल्शेविक रिवॉल्यूशन वाज बिटवीन द लेनिन ग्रुप्स एंड मेंशेविक, दैट वाज द बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स ऑफ रशिया. So they declared the final revolution and got the reins in his hand. This came to be known as Socialist Bolshevik Revolution. Thus, the 3,000 years of old Tsardom came to be an end. And for the first time, Russia was without a Tsar. Tsar group के majority होने के बावजूद भी उनकी पावर चली नहीं. 300 साल से ज़ार की ही पावर चल रही थी, लेकिन finally it came to an end. Now, efforts of world peace. कैसे कैसे वर्ल्ड पीस को एस्टैब्लिश करने के लिए एफर्ट्स लगा है, तो कि कहा था कि हमने आगे देखा था नेशनल ट्रीटी वाले में कि नेशनल लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश किया गया था. तो व्हाट इज दिस लीग ऑफ नेशन? The horrors of the world war explain the absolutely necessity of world peace to the nation of the world. सारे नेशंस को एक सीख दे रहा था, बुला रहा था कि भाई अब पीस मेंटेन करो. एंड फॉर दिस अ नीड फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज फेल्ड. So it became necessary to think actively and immediately about world peace. The American President Woodrow Wilson had contributed substantially in the establishment of League of Nations. The points suggested by Woodrow Wilson were presented during the Paris peace process on 10th January 1920. इसके बारे में हमने देखा कि कब हुआ था ये पेरिस पीस प्रोसेस, ट्रीटी ऑफ वर्साइले के वक्त, राइट? So League of Nations was formed. Now what were the aims of League of Nations?
तो टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, किसी के भी बीच में इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए और कहाँ पे भी दंगे फसाद होने चाहिए नहीं. एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अदर नेशन, हर नेशन को दूसरे नेशन की रिस्पेक्ट करनी है. पॉलिसी ऑफ वॉर डिसाइड किया गया. देन टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि अगर हम हमारे फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ हम बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को स्थापित किए गए. टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू नेगोशिएशन और मेडिशिएशन. इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स यानी कि जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसको आपस में ही सॉल्व करना है पीसफुली. इफ एनी नेशन इग्नोर्स द लीग ऑफ नेशन और इट्स मेडिशिएशन, इट वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ रिबेल नेशन, इसको उसके खिलाफ माना जाएगा. द लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश्ड फॉर वर्ल्ड पीस did not manage to keep a control over the imperialist policy of the superpowers, and in 1933 the second world war began. Actually world peace जो establish की उसी की वजह से ये second world war हुआ. So this was about the first world war and the Russian revolution. Now in the next chapter we will learn about the second world war. I want you, before we start with that chapter, that is chapter number 3, Movement Towards a New World, I want all of you to complete the textual exercise from the PDF that we will share in the next lecture. Thank you students. Have a nice day.